Structure of a bisexual flower. Flower is a specialized shoot in which the leaves are modified into floral structure. Okay. There is a stalk which supports the flower. Okay. Some flowers may be without stalk called sessile flowers. At the tip of the stalk may be enlarged to form a cup shaped receptacle or thalamus. तो अगर हम लोग फ्लावर को देखें यहाँ पे ये वाला पार्ट हुआ स्टॉक जो अटैच करने में हेल्प कर रहा है और ऊपर में जो स्वोलन पार्ट है उसको बोलेंगे थैलामस. ठीक है, जो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स को पकड़ के रखा है, मतलब जो वोल्स है. तो फर्स्ट वोल क्या है? कैलिक्स. ठीक है, विच इज़ द ग्रीन सेपल्स. उसके बाद कोडोला विच इज़ द पेटल्स. उसके बाद एंड्रोशियम, long thread like structures somewhat projecting out and each usually ending in a bilobed tip. These are stamens. ठीक है, और कलेक्शन ऑफ स्टैमिन को क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम. हर एक स्टैमिन में एक फिलामेंट है और एक एंथर है. ठीक है, दिस इज द एंथर, दिस इज द फिलामेंट एंड द एंथर इज बाइलोब्ड, मीन्स देयर आर टू लोब्स. ठीक है, but remember there are two lobes but four chambers. So if we see that anther is something like this, मतलब यहाँ पे चार चेम्बर होता है. ठीक है, but ultimately they are two lobes. Okay, if we cut it like this, there are four chambers and two lobes. Okay. हाँ, each stamen consists of thread-like filament and bilobed anther. Bilobed anther. Fourth wall. Fourth wall is centrally located pistil that may be formed of a single female unit called carpel. Okay. Or of several fused carpel collectively called gynoecium. Each carpel consists of ovary, style and stigma. So each carpel consists of stigma, style and ovary. Like this is anther filament collectively called stamen. In the same way, stigma, style, ovary collectively called carpel. And collection of carpel is called gynoecium. Okay, so gynoecium is the female whorl. Next is complete and incomplete flower. So complete flower is one which contain all the four whorls. Okay, if one or more set of four floral whorls are missing, the flower is called incomplete. Okay, so remember all the unisexual flowers are basically incomplete flowers. Why? Because either the male whorl is absent or female whorl is absent. Okay. Next is essential and non-essential parts of a flower. Essential whorls are those parts which assist in reproduction, like androecium and gynoecium. Okay, stamen and carpel are the essential part. तो जो भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा दोज आर कॉल्ड एसेंशियल पार्ट. और नॉन एसेंशियल मतलब हुआ जो लोग रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, मीन्स दे आर एक्सेसरी पार्ट्स. These are the helping parts which either protect the reproductive flower parts of flower or make the flower attractive, like petals, sepals, etc. Okay, so in some cases the sepals and petals look very similar and cannot be differentiated from one another. They are called tepals. ठीक है, collectively called perianth. When perianth is green like sepals, it is called sepaloid, and when perianth is non-green, it is described as petaloid. ठीक है, तो अगर वो ग्रीन रह रहा है तब उसको सेपलॉइड बोलेंगे और अगर नॉन ग्रीन है तब उसको पेटलोइड. नेक्स्ट कम्स ब्रैक्ट्स. When a flower arises in the axil of a leaf-like structure, okay,
द स्ट्रक्चर इज नोन एज अ ब्रैक्ट। अब देखो ब्रैक्ट क्या है, ब्रैक्ट एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज द ब्रैक्ट जो लीफ लाइक। यहाँ पे एक्चुअल फ्लावर ये वाला है, बट ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है अगर कोई बाहर से देखे तो उसको लगेगा कि यही फ्लावर है, ठीक है, जैसे बाउगेनविला। सो वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट। ब्रैक्ट में भी ग्रीन लाइक ऑर्डिनरी लीव्स और एट टाइम्स दे आर कलर्ड। सो द लार्ज एंड कलरफुल ब्रैक्ट ऑफ बाउगेनविला इज ईजिली मिस्टेकन फॉर पेटल। तो बाउगेनविला का जो ब्रैक्ट है उसको लगता है कि वो पेटल है, बट एक्चुअली में वो जस्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्टरीज। Most flowers produce sweet fragrant liquid called nectar. Groups of nectar secreting cells called nectaries are situated usually at the base of pistil or on the bases of petals. So the nectar attract insects for cross pollination. In some cases nectaries are very prominent as in Nasturtium, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेस ऑफ द पेटल में नेक्टरी प्रेजेंट है और इस पे नेक्टर सिक्रीट होता है। नेक्स्ट कम सेक्सुअलिटी इन फ्लावर, मेल फीमेल एंड बाइसेक्सुअल। द एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन के अंदर होता है हम लोग का मेल गैमेट। द ओवेरी बियर्स द ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट। मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस। इफ वी सी this is anther, it produces pollen grain, and inside the pollen grain, suppose this is the structure of pollen grain, inside the pollen grain there is male gamete. And if we see this is ovary style stigma, ठीक है। ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट। सो अल्टीमेटली दिस मेल गैमेट नीड्स टू बी traveled through style to come to the female gamete. Okay, so the stamen and carpel are made up, are the male and female parts. जो stamen है, the flower which contain both stamen and carpel is called bisexual. तो जिसमें stamen और carpel दोनों ही हो उसको bisexual बोलेंगे या hermaphrodite। सारे एग्जाम्पल याद रखना है। उसके बाद फ्लावर जिसमें एक ही हो, या तो स्टेमेन हो या कार्पेल हो, उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल और इनकम्प्लीट फ्लावर। एग्जाम्पल पपाया एंड पाम, ठीक है। यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर जिसमें स्टेमेन पाया जाए उसे स्टेमिनेट फ्लावर कहा जाता है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कार्पल्स पाया जाए उसको क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया। न्यूटर फ्लावर क्या है, इन विच बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर लैकिंग, जैसे रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। नेक्स्ट कम्स जनरल डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट कैलिक्स। अब देखो कैलिक्स में यूजुअली देयर आर 5 सेपल्स, किसी किसी में कम भी हो सकता है, किसी किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। अगर सारा सेपल्स फ्री है तब उसको पॉलीसेपलस बोलेंगे, और अगर सारा सेपल्स फ्यूज्ड है तब उसको गैमोसेपलस बोलेंगे। Sometimes as in hibiscus there may be second series of sepal called episepal, collectively called apicalyx. Now when the flower opens the sepal may fall off. Sepals are usually green but in some cases they are brightly colored. Okay. नेक्स्ट देखो कोरोला। द पेटल्स आर जनरली अरेंज्ड इन अ सिंगल वोल्ड बट समटाइम्स देयर मे बी डबल वोल्ड लाइक इन पॉपी, और दे मे बी अरेंज स्पाइरली लाइक इन लिली। पेटल्स में बी फ्री जैसे पॉलीपेटलस, एंड फ्यूज्ड लाइक गैमोपेटलस, ओके, फॉर्मिंग अ ट्यूब। The colorful fragrant petals attract insect for pollination. They also protect stamens and pistil, especially when petals form a tube. Androecium. The number of stamens in different flowers may vary from a few to large number. Each stamen has a long filament and an anther. हर एक stamen में क्या होता है, anther और filament. Anther is two-lobed. Each lobe has 2 pollen sac.
हम बताए ना टोटल 4 पोलन सैक होगा. विद इन द पोलन सैक कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स and when fully matured the pollen grains rupture to liberate pollen sac rupture to liberate pollen grain. The pollen grains are generally powdery particles of different shape and size. ठीक है. अब पोलन ग्रेन का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है. इन एंड्रोशियम द स्टैमेंस में भी फ्री, अगर फ्री रहता है तो उसको पॉलीएंड्रस बोलते हैं, जैसे लाइक इन पेटूनिया, और ज्वाइंट इन सिंगल डबल एंड सेवरल ग्रुप्स. देखो यहाँ पे ग्रुप्स के केस में भी है, राइट. अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप है तो उसको मोनोएडल्फस बोलेंगे. अगर दो ग्रुप है, जैसे ये ग्रुप है ये ग्रुप है, उसको डाईएडल्फस बोलेंगे. और अगर बहुत सारा ग्रुप है तब उसको पॉलीएडल्फस बोलेंगे. ठीक है. सो मोनोएडल्फस means united in one group like China rose. Okay. Diadelphous united in 2 bundles, example P. Next is polyadelphous. Filaments are united in several groups like in bombucks. ठीक है. So gynoecium. Gynoecium is also known as pistil. It is composed of one or more carpels. Each carpel consists of 3 parts. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी. ठीक है. गाइनोशियम को ही पिस्टिल बोला जाता है, याद रखना. सो पिस्टिल इज द नेम ऑफ द वोल. ठीक है. एंड पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ मेनी कार्पेल्स. सो ऐसा मत समझना कि कार्पेल और पिस्टिल सेम ना हो. कार्पेल इसको कलेक्टिवली बोला जाता है. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी को पूरा मिला के कार्पेल बोलेंगे, और बहुत सारे कार्पेल को एक साथ मिला के हम लोग गाइनोशियम या पिस्टिल बोलेंगे. ठीक है. स्टिग्मा इज द टर्मिनल नॉब लाइक पार्ट. इसमें 2 lobes हैं. मे अज्यूम अ फेदरी अपीयरेंस. स्टिग्मा इज कवर्ड विथ हेयर और विथ ग्लैंड्यूलर पैपिले. इट सर्व एज अ लैंडिंग प्लेस फॉर पोलन ड्यूरिंग पोलिनेशन. नेक्स्ट इज स्टाइल इज अ ट्यूब्यूलर स्लेंडर स्टॉक विच कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू ओवेरी. ओवेरी इज द सोलन वेसल पोर्शन. द inner cavity of ovary may be single chamber or divided into several chambers. जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं. अगर मान लो ये ओवेरी है, इसको हम लोग ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं. ठीक है. कट करते हैं. तो अगर ऊपर से देखें तो ओवेरी बहुत सारे चेम्बर्स में भी हो सकता है. राइट. ओवेरी में कुछ ऐसा चेम्बर हो सकता है. ठीक है. एंड दीज आर ओव्यूल्स. ऐसे ओव्यूल्स हो सकता है. ठीक है. तो इन दिस वे इट कैन बी प्रेजेंट, या और भी बहुत सारा वे है. ठीक है. सो प्लेसेंटा अटैच द ओव्यूल टू द वॉल ऑफ ओवेरी. नेक्स्ट कम्स सेक्सुअलिटी. इन मोस्ट प्लांट्स द फ्लावर आर बाइसेक्सुअल. दे हैव बोथ पार्ट्स. बट कुछ प्लांट्स में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट. सच प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. मोनोशियस प्लांट. ठीक है. मोनोशियस प्लांट का मतलब मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो सेम प्लांट में ग्रो करेगा. मतलब कुछ ऐसे समझिए, ये प्लांट है, इसमें किसी में मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है. ठीक है. बट मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है. डायोसियस प्लांट. डायोसियस प्लांट का मतलब मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट प्लांट्स में. ठीक है. मतलब एक पूरा पार्ट मेल है, मतलब एक पूरा फ्लावर ही, पूरा प्लांट ही मेल है, मतलब इसमें सारे फ्लावर्स मेल होंगे. ठीक है. और एक प्लांट है जो कि पूरी फीमेल है, सारा फ्लावर इज फीमेल. दिस टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड डायोसियस. ओके. एग्जाम्पल इज स्टैमिनेट, पिस्टिलेट, इनफ्लोरेसेंस एंड प्लेसेंटेशन. इनफ्लोरेसेंस इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ प्लांट. ठीक है. तो कैसा अरेंजमेंट है? अगर हम लोग देखें, सबसे पहले सिंगली आइदर एट एपेक्स ऑफ द मेन स्टेम और एट द टर्मिनल एपेक्स ऑफ द लैटरल ब्रांचेस. मतलब देखो ये लैटरल ब्रांचेस है, इसके टर्मिनल में प्रेजेंट है, या ये जो अल्टीमेट एपेक्स है उसमें अल्टीमेट टिप में प्रेजेंट है. ठीक है. तो एक तो ऐसे अरेंज हो सकता है. उसके बाद हो सकता है एक्साइल में लोकेट. मतलब देखो जो लीफ है, लीफ और स्टेम के बीच का जो एंगल बन रहा है उसको एक्साइल बोलते हैं. तो एक्साइल में फ्लावर प्रेजेंट है. ओके. और एक क्या हो सकता है, ग्रोइंग आउट फ्रॉम द एक्साइल ऑफ डिफरेंट लीफ एंड रीचिंग द सेम लेवल. देखो एक्साइल से निकल के अल्टीमेटली ये लोग सेम लेवल पे आ रहा है. ओके.
Next is the axis is laterally flattened, मेकिंग अ डिस्क एज इन सनफ्लावर. तो सनफ्लावर के केस में एक्सिस जो है वो ऐसा फ्लैट हो चुका है जिसमें मल्टीपल फ्लावर्स आर प्रेजेंट. ठीक है. प्लेसेंटा इज द टिश्यू. Placenta is the tissue that attaches the ovule to the wall of ovary. Placentation is the manner in which ovules are arranged. Ovule turns into seed, and ovary turns into fruit. Their different arrangement can be seen in fruits such as those of pea, tomato, mango, lotus, etc.